Assalamu alaikum, dear viewers. Today I am talking about the career counseling or future planning. Many students have asked me about their future career, especially those students who have done FA, FSC, FSC engineering, pre-engineering, FCS computer sciences. They have asked me about in which field they can survive, in which field they should go, because this is very important step of FA. After intermediate, after FCS or FSC, you have to take decisions, and on the basis of your decisions you will select the field, you will select their career, and you will get opportunities in that particular field. FA FSC के बाद जो आपने एक फील्ड सेलेक्ट करनी है कि आपने किस फील्ड में जाना है, आपने कॉमर्स की फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, आपने यू हैव टू सेलेक्ट द मेडिकल, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, बिजनेस फील्ड, डिप्लोमास, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस. तो स्टूडेंट आस्क्ड मी अबाउट their future career, about their future planning. So I am talking about the career counseling for the students, and then I will come to the types of student. First याद रखें कि हर स्टूडेंट्स को each student must know three things about himself. हर स्टूडेंट्स को अपने बारे में इस प्लानिंग के लिए, कैरियर काउंसलिंग, फ्यूचर काउंसलिंग के लिए, कैरियर काउंसलिंग के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए हर स्टूडेंट्स को तीन चीजें अपने बारे में उनको मालूम होनी चाहिए. They should know three things, and I will discuss these things. First, his personality trait, कि उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, उसका माइंडसेट क्या है, वो किस फील्ड में प्रॉपर एफर्ट कर सकता है. सेकंड, कैपेबिलिटीज कितनी, उसमें फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज भी आ जाती हैं, मेंटल कैपेबिलिटीज भी आ जाती हैं. एंड थर्ड, देयर प्रायोरिटीज, वैल्यूज, we can say the purpose of life. And similarly there are three types of students. Students की भी three types है. After intermediate, after FSC, FCS, there are three types of students. First, below average students. अब below average students majority होते हैं. अब उन्होंने किस फील्ड में जाना है, अब उन्होंने आगे कैरियर कैसे बनाना है, अपनी कामयाबी कैसे हासिल करनी, हाउ टू गेन सक्सेस इन देयर लाइफ, इन देयर कैरियर. पाकिस्तान में रह के काम करना है, पाकिस्तान में रह के क्वालिफिकेशन अचीव करनी है, या बाहर अब्रॉड बाहर जाना है. सेकंड, एवरेज एंड अबव एवरेज स्टूडेंट्स. 60%, 70% जो मार्क्स लेते हैं, एवरेज, वी कैन से एवरेज एंड अबव एवरेज. एंड थर्ड, एक्सीलेंट ग्रेडिंग स्टूडेंट. First, I will tell you those important things that each student know about himself or herself. हर स्टूडेंट्स को ये चीजें मालूम होनी चाहिए. Now come to the main focus area and points that I have described on the board. First, decision taking after FFSC. When we are taking decision, then keep in mind there are influence of society, company and parent pressures. Generally parents forces their students to excel in the medical field. जिस तरह पेरेंट्स चाहते हैं जी बेटा डॉक्टर बने या इंजीनियरिंग बने, अगर वो इंजीनियर नहीं है, इफ ही इज नॉट क्वालिफाइड फॉर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और मेडिकल फील्ड, तो कई लोग समझते हैं बस अब उनका फ्यूचर ज़ाया हो गया. दिस इज रॉन्ग. ऐसी बात नहीं है. आप किसी भी फील्ड में, किसी भी एरिया में, किसी भी डिसिप्लिन में, खा वो नेटवर्किंग है, खा वो डेटाबेसेस है, खा वो ह्यूमैनिटीज है, खा वो whether it is any skilled area, whether it belong to refrigerator, AC, whether it belongs to plumbing,
whether it's belong to any skilled field, whether it belongs to armed forces, you can excel in that particular field. कि स्टूडेंट्स किसी भी फील्ड में सक्सेस और एक्सीलेंस को अचीव कर सकते हैं. It is very good कि if a student have gained A plus marks and he adopt the medical field or engineering field, कि वो मेडिकल फील्ड में जाता है, वो एक डॉक्टर बन जाता है, इट इज वेरी गुड थिंग. बट we have seen in our society that many persons are leading the nations, many persons are leaders and people give their examples as a role model, but they are not doctors, but they are not teachers, sometimes they are average persons. Many person, or we can say the founder of Microsoft, Bill Gates, the founder of Facebook. Similarly, we can give hundred of other examples. Okay, people have done the creativity, people have done the new inventions by just rearranging the things, and they have done a lot of work and they have earned success and fame, and they have converted their dreams into ideas. हम देखते हैं कि ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कामयाब हैं, ना उन्होंने मेडिकल, ना वो डॉक्टर होते हैं, ना वो इंजीनियर होते हैं, लेकिन लाखों दुनिया उनको सुनती है, लाखों उनके फॉलोअर्स होते हैं और वो एक रोल मॉडल सेट करते हैं. तो मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा भी और बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं जिसमें ह्यूमैनिटीज़ हैं, उसमें आर्ट्स है, उसमें स्किल्ड है, ठीक है, कि जिसमें स्टूडेंट्स जा सकते हैं. बट स्टूडेंट यू हैव टू टेक डिसीजन एट दिस लेवल, स्पेशली FAFSC के बाद जब आपने डिसीजन लेना होता है तो यू हैव टू टेक योर डिसीजंस ऑन ग्राउंड रियलिटीज, ऑन फ्यूचर प्लानिंग्स, ऑन योर बजट्स, ऑन योर रिसोर्सेस, कि आपका बजट कितना है, आपकी फ्यूचर प्लानिंग कितना है, आप किस लेवल तक जाना चाहते हैं, पेरेंट्स आपको किस लेवल तक सपोर्ट कर सकते हैं, आप अब्रॉड बाहर जाके पढ़ सकते हैं कि नहीं, आप करियर कहाँ बनाना सकते हैं, यू वांट टू बिल्ड योर करियर इन पाकिस्तान और अब्रॉड, यू हैव टू टेक डिसीजन इन दिस डायरेक्शन. अगर आप इस टाइम को ज़ाया कर दें, इस टाइम स्पेन को, तो सारी जिंदगी फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे, यू कैन नॉट डू एनीथिंग. सो यू हैव टू डिसाइड एट दिस लेवल कि इन विच फील्ड यू वांट टू एक्सेल, इन विच फील्ड यू वांट टू मेक योर करियर. First, see your patient mindset. That is area of interest. Then move forward according to available resources. First, you have to see your mindset कि आपका area of interest किस तरह है. ऐसा नहीं सकता कि आई एम वीक इन मैथमेटिक्स और मैं मैथमेटिक्स में वीक हूँ, या मेरा कॉमर्स की तरफ जहन नहीं है, तो मैं एक देखूं कि एक सब लोग जो है ना वो BCom कर रहे हैं, BA की तरफ जा रहे हैं, तो मैं भी कॉमर्स फील्ड उठाऊँ. फर्स्ट सी योर पैशन कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं. एंड रिमेंबर भी कीजिए, आपके जो अंदर जो पैशन क्रिएट होता है या आपके अंदर जो एक इंस्पायरेशन क्रिएट होती है, उसमें बहुत बड़ा रोल्स आपके फ्रेंड्स का होता है और बहुत इसमें बड़ा रोल्स आपकी कंपनी का होता है. एक फेमस कोड है कि इफ यू आर रनिंग विद नाइन लीडर्स देन यू आर नंबर 10 ऑफ लीडर. कि अगर आप 9 लीडर्स के साथ चल रहे हैं तो आप 10वें लीडर हैं. इसी तरह अगर आपकी कंपनी बैड कंपनी है, देन यू विल डिस्ट्रॉय योर कैरियर, योर टाइम एंड योर एफर्ट्स. अगर आप टाइम वेस्ट कर देंगे, देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन योर लाइफ. तो एट दिस स्टेज ईच स्टूडेंट मस्ट नो अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ. हर स्टूडेंट्स को 3 चीजें अपने बारे में पता करनी चाहिए. फर्स्ट है योर पर्सनैलिटी ट्रेड्स, कि आपकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स कौन सी, एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है आपके. देखिए उसमें 2 चीज, आपकी वीकनेस कौन सी है, आपकी स्ट्रेंथ कौन सी है. आर यू स्ट्रॉन्ग इन मैथमेटिक्स, आर यू स्ट्रॉन्ग इन जनरल बिहेवियर्स, इन आर यू आर स्ट्रॉन्ग अकाउंट्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट, मैनेजरियल स्किल्स, वेदर यू आर स्ट्रॉन्ग इन कम्युनिकेशन स्किल्स, आप किस फील्ड में स्ट्रॉन्ग है. सेकेंड थिंग योर एबिलिटीज. अब इसमें मेंटल कैपेबिलिटीज और फाइनेंशियल्स बहुत आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल अब एक स्टूडेंट से वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, किसी टॉप की यूनिवर्सिटी से किसी हाईली कोर्स में एडमिशन ले सकता है. ही कैन टेक एडमिशन. आई कैन गिव नंबर ऑफ 100 ऑफ
universities that are offering very excellent courses, software engineering है, computer sciences है, but some student cannot take admission due to their financial constraints. बस students के parents उनको support नहीं कर सकते कि वो इतनी high university में नहीं पढ़ सकते. अब उन्होंने फाइनेंशियल और मेंटल कैपेबिलिटीज, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स भी देखना कि यार अब वो अपने रिसोर्सेज के मुताबिक किस फील्ड में जा सकते हैं. अब ऐसी सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जिस तरह MCSC है, जिस तरह CCN है, MCSD है, कि दो स्टूडेंट्स हु हैव डन देयर स्पेशल certification in special courses and they have got experience training in industrial area, no they are getting highly paid salaries. कि वो स्टूडेंट जिन्होंने ये प्रोफेशनल कोर्सेज किए और उसके बाद उन्होंने उसमें काम किया, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ली है, उन प्रोफेशनल कोर्सेज वो तो उसका टाइम ड्यूरेशन भी कम होता है, 1 ईयर होगा, 5 to 6 पेपर देने होते हैं आपने, 1 ईयर होता है और उसमें उसमें उतना आपका सरमाया इन्वेस्टमेंट नहीं लगती जिस तरह बड़े डिग्रीज में लगती है. लेकिन उसके बाद आप मार्केट में काम करते हैं, then you can get highly payable job in Gulfs, in industrial areas in Pakistan as well as in the foreign countries. And third thing is your values. What are the priorities and purpose of life? देखिए, each student have different family background. Each student have different mentality. हर स्टूडेंट्स की एक कंपनी होती है, एक उसकी फैमिली बैकग्राउंड होता है. ठीक है, आप यू हैव टू सेट योर गोल. सबसे पहले जो मस्ट है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है. अब जिस स्टूडेंट का विजन क्लियर नहीं है, जिस स्टूडेंट का टारगेट एरिया क्लियर नहीं कि यार मैंने इस लेवल तक जाना है या मैंने ये चीज गेन करनी है, वो कभी एक चीज एक कोर्स में आ गया, वो छोड़ के दूसरे कोर्स में आ गया, वो छोड़ के तीसरे कोर्स में चला गया. ठीक है, वो सफल ही करता रहता है. कई स्टूडेंट ऐसे देखते हैं कि वो उनको पेरेंट्स सपोर्ट भी करते हैं, वो आके काउंसलिंग लेते हैं, सर क्या काम करना चाहिए, उसके बाद वो फॉरेन लैंग्वेज शुरू कर देते हैं, फिर कुछ ऐसा फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं, उसके बाद वो छोड़ के वो वेब एप्लीकेशन को चलते, वेब डिजाइनिंग शुरू कर देते हैं. ठीक है, एक स्टूडेंट है, वो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, वो मेरे पास आया, उसने कहा कि सर फ्री लांसर में बहुत उसमें बड़ा, इसमें चार में बड़ा, इसमें वो उसने फ्रीलांसिंग काम शुरू कर दी सीखना. फिर एक 2 महीने पे लगाया, जब आगे हार्डशिप मुश्किल आई तो वो छोड़ के उसने ये फॉरेन लैंग्वेज सीखनी शुरू कर दी. फिर वो छोड़ के उसने CCN करना शुरू कर दी. फिर 1-1.5 महीना वो करने के बाद उसने डेटाबेस की तरफ चला. अब उसने किसी भी फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल नहीं की. याद रखें, तमाम किसी भी आप में फील्ड में आप जाएंगे, उसमें हार्डशिप्स आएंगी, उसमें मुश्किलात आएंगी, उसमें डिफिकल्टीज आएंगी. यू हैव टू लर्न दैट पर्टिकुलर स्किल इन दैट फील्ड. आपने उस फील्ड में मुश्किलात को आपने फेस करना है और आगे बढ़ना है और उसकी एक्सपर्टीज हासिल करनी, स्किल हासिल करने के बाद आपने इंडस्ट्रियल लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करना है. अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि आप कि एक बिलो एवरेज स्टूडेंट्स किन फील्ड्स में जा सकता है, एक एवरेज स्टूडेंट किन फील्ड में जा सकता है, और इन स्टूडेंट्स को कौन कौन सी हार्डशिप या मुश्किलात फेस करते हैं. कि वो चीज़ें जो हमने फेस की हैं, जो हमने देखी हैं, और हमारे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने जो बिलो एवरेज थे, जिन्होंने सर्टिफिकेशंस की हैं और आज वो गल्फ्स में, फॉरेन में, मस्कत में, UAE में बड़ी अच्छी सैलरीज ले रहे हैं. फिर हमारे कई ऐसे स्टूडेंट जो कि बहुत ब्रिलियंट थे और बहुत वो अच्छी पोस्ट पे गए, और कई ऐसे स्टूडेंट एवरेज थे जो थ्रू आउट अपने एकेडमिक करियर में एवरेज रहे हैं और उन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई की. एक एवरेज उन्होंने, उनका करियर भी एवरेज था और आगे उनकी जॉब्स भी एक वी कैन से एवरेज. जिस तरह उसकी बेस्ट एग्जांपल, मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट था, हमेशा एक 65 to 70% के रेंज में रहा हूँ MS तक, and then I got the job in education sector. So these are the examples. See about your values, priorities and purpose of life. कि आपकी पर्पस ऑफ लाइफ के, आपकी फैमिली के, आप पाकिस्तान में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अब्रॉड में. इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन पाकिस्तान, इफ़ यू वांट टू एक्सेल टू मेक योर करियर इन आवर कंट्री, then there are number of fields, but you have to set your mind कि आपने अपने माइंड पे सेट करना है कि आपने किस फील्ड में जाना है
और आपने उसमें कितनी एफर्ट्स करनी है। एवरी फील्ड रिक्वायर्ड एफर्ट्स। हर फील्ड में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट्स करनी पड़ेगी, आपको हार्डशिप और उस फील्ड के एक्सपर्ट से आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। Then you can get excel in that particular field. Then you can get achieve the excellence in that particular field. So in the next coming videos I will briefly tell about the types of students के below average students किन fields में जा सकते हैं, similarly average and above average students किन field में जा सकते हैं, and excellent grading students they have already set their mindset। जो excellent grading student होते हैं उनको अपने goals भी उनके उनके target areas भी clear होते हैं, उनका mindset भी clear होता है और वो efforts भी उसके उसी field के मुताबिक करते हैं। So in the next video I will describe the types of students and their relevant field, but remember students and viewers that you have to pay price for everything। कि आपने किसी भी लेवल तक जाना है उसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपको एफर्ट चाहिए, आपको काउंसलिंग चाहिए। उस फील्ड जब तक आप उस फील्ड को वो नेटवर्किंग है, इफ दे वेदर इट इज डेटाबेसेस, नेटवर्किंग, मार्केटिंग, वेब एप्लीकेशंस, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, प्लम्बरिंग, ऐसी इलेक्ट्रिकल फील्ड, यू हैव टू लर्न फ्रॉम expert of that field। You have to gain skills, you have to prove your worth in that field। आप उस फील्ड में मेहनत करेंगे, उस फील्ड में खाक में रोलेंगे, then you will get your credibility। फिर आपको आप उस फील्ड में मेहनत करने के बाद एफर्ट और टाइम मैनेजमेंट के बाद फिर आप किसी लेवल तक जाएंगे, किसी इंडस्ट्रियल तक जाएंगे, उस देन द सोसाइटी एंड द इंडस्ट्री विल पे यू अकॉर्डिंग टू योर सर्विसेज। फिर आपको सोसाइटी और जो सोसाइटी है, जो इंडस्ट्रीज है, फिर वो आपको पे करेगी। ओके, some fields are very dynamics। For example, you are working in NGOs or you are working in multinational companies, then they require marketing, your marketing experience, your public dealings। Some field are require dynamic, so a dynamic mind person can survive, can excel in that field, but some fields require a lot of patience। For example, you are doing CA, for example you are doing BS electrical engineering, mechanical engineering, then you should focus on your subject and it require a lot of patience in that। आपको बहुत ज़्यादा persistent और consistent होकर अपने उस focus area के ऊपर काम करना पड़ता है। तो first you have to see your mindset कि आपके अंदर कितना आप उस कितनी आप effort कर सकते हैं, कितने आप उस field के अंदर आगे move कर सकते हैं। And you have to do hard work in that field। Without hard working, without excellent struggle, you cannot get excellent achievements। Now in the coming videos I will describe about the types of students and their particular fields। Thank you। Allah Hafiz।